Hi students, this is Rathore sir going to discuss elimination reactions from the chapter haloalkanes and haloarenes. This reactions name also named as beta elimination or dehydrohalogenation. So first understand the meaning of these words and understand these lines. What is elimination reaction? When a haloalkane, तो हमें लेना है एक haloalkane with beta hydrogen. अब उसमें beta hydrogen क्या होता है? is react with alcoholic KOH. इसको समझना है. Elimination of hydrogen atom from beta carbon. So beta carbon से hydrogen atom का elimination होना and halogen atom from alpha carbon. So alpha carbon से halogen atom, beta carbon से hydrogen atom, beta carbon से hydrogen, alpha carbon से halogen atom. दो atom का removal होगा. So this is known as elimination because elimination होगा atoms का. So इसको बोलते हैं elimination reaction. और hydrogen and halogen दोनों eliminate होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको dehydrohalogenation means removal of H and X. Now to understand this, first let's take this example. Understand this example. See, I have taken a haloalkane. So first understand the molecule of haloalkane, then alcoholic KOH. इन दोनों को हमें समझना है. देखिए, haloalkane में होता है halogen atom. This halogen atom is having 1, 2, 3 lone pairs. This halogen atom is bonded with carbon. So this functional group is bonded with this carbon. So the carbon which is directly bonded to the functional group is known as alpha carbon. ठीक है? And from the alpha carbon, the carbon which is directly bonded with the alpha carbon is known as beta carbon. So this carbon is beta carbon. And hydrogen atoms directly bonded to beta carbon are known as beta hydrogens. So these three are beta hydrogens. So this is halogen atom. Halogen atom is bonded with this carbon. So this carbon is known as alpha carbon because functional group से जुड़ा हुआ carbon is known as alpha carbon. Alpha carbon से directly bonded carbon is known as beta carbon, and beta carbon से joined hydrogen are known as beta hydrogen. So there are three hydrogens, 1, 2, 3. It is CH3, then CH2 and X. CH3, CH2, X. It is a haloalkane molecule अपना, and this is reacting with alcoholic KOH. Now aqueous KOH and alcoholic KOH, there is a difference. aqueous KOH देता है हमें K plus and OH minus, which is a strong nucleophile. But alcoholic KOH होने से this becomes heavier and it is a strong base. ये molecule बन गया अब strong base. तो base abstract करता है hydrogen को, which one is acidic hydrogen. So acidic hydrogen को ये abstract करेगा. So यहाँ पर acidic hydrogen होते हैं beta hydrogen. So beta hydrogen beta carbon से join जो भी hydrogen है उनमें से किसी एक hydrogen को ये abstract कर लेगा OH और बन जाएगा अपना H2O. ठीक है? And when this hydrogen is removed, these electrons bonded between carbon and hydrogen will shift here, and this purple color bond will be formed between these two carbon atoms. Between these two carbon atoms bond will be formed and alkene is formed. So hydrogen and halogen ये चले जाएंगे and alkene बनेगा. तो देखिए पहले hydrogen गया OH के साथ, बना H2O. ठीक है? Now these two electrons shift here and form a bond. Now this carbon is already formed 4 bonds, 1, 2, 3 and 4. 4 bonds are formed. So fifth bond is going to make. So 5 bonds are not possible. So this halogen atom will be removed along with its 2 shared electrons. ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा as a X minus और इसके साथ आएगा K. So बनेगा KX. ठीक है? सो OH के साथ H बना H2O, K के साथ X बना K के साथ X, तो बना KX. ठीक है? और दूसरा पीछे बच गया है. ये दोनों निकालने के बाद, ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ये बन गई है एल्कीन. सो हियर एल्कीन इज फॉर्म्ड एंड एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स is take place. In this case H2O is formed. So elimination of hydrogen and halogen. So this reaction is known as dehydrohalogenation reaction, means removal of hydrogen atom and halogen atom. So from here see this OH will take up H and this bond comes here, double bond is formed. So alkene is formed and halogen atom is removed along with K and X is formed. Now if there is a possibility of forming more than one alkene
if there are more than one beta hydrogens present in हेलोएल्केन। हेलोएल्केन में अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो उस कंडीशन में क्या होगा, कौन सी एल्कीन बनेगी, मीन्स कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो दैट मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय सेट-जेफ रूल। व्हाट इज सेट-जेफ रूल, हमें ये अंडरस्टैंड करना है सेट-जेफ रूल क्या होता है। सो देखिए सेट-जेफ दिया था रशियन केमिस्ट थे अलेक्जेंडर जेटसेव जिनका नाम था, इस नाम का प्रोनाउंसिएशन है सेट-जेफ। सो दिस इज नोन एज सेट-जेफ रूल। सो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए पहले मैं ले रहा हूं एक हेलोएल्केन। दिस इज अवर हेलोएल्केन, ये अपना हेलोएल्केन है। इसमें देखिए कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स आर देयर हियर, 5 कार्बन्स आर देयर, ठीक है। एंड सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे तो इसका नाम हो गया 2 पर ब्रोमो एंड पेंट यानी 5 कार्बन, एन यानी कार्बन्स आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, सो 2 ब्रोमो पेंटेन वी हैव टेकन आवर हेलोएल्केन, ठीक है। नाउ दिस ब्रोमीन is bonded with this carbon, so this carbon is known as alpha carbon, ठीक है। this is alpha carbon and alpha carbon से directly attached carbon is known as beta carbon and beta carbon से bonded hydrogen are known as beta hydrogen, ये है अपना beta hydrogen, ठीक है। now अल्फा ब्रोमीन जिस हेलोजन जिस एटम से जुड़ा है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जॉइंट कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन, सो ये भी बीटा कार्बन है और इससे ये कार्बन भी ज्वाइन है, सो ये भी बीटा कार्बन है। 2 टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन आर देयर, सो 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर देयर। ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन ये बीटा हाइड्रोजन। देखिए फिर से ये ब्रोमीन एटम इज बॉन्डेड विद सेकंड नंबर ऑफ कार्बन, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड 2 कार्बन है, दोनों को बोलेंगे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से ज्वाइन हाइड्रोजन है उनको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। सो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ब्रोमीन रिमूव होगा। अब केस हो गए 2, देखिए ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, सो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। 1 नंबर वाले से ये बनेगा और सेकंड नंबर वाले से ये वाला इधर वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए पहले देखते हैं हम कि इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इधर रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH हमने यूज किया, ये रहा एल्कोहलिक KOH। सो इसमें क्या होता है, OH है, OH विल टेक अप दिस H, सो बन जाएगा H2O, ठीक है। फिर ये ब्रोमीन निकलेगा और ब्रोमीन और के साथ KBr बन जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड हट गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच आया है डबल बॉन्ड, बाकी चेन एज इट इज है, ठीक है। ये अपना एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है पेंट 1-इन, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है, सो पेंट 1-इन बना है। अब फिर से देख लेते हैं इधर वाले एक और केस है, यानी अगर इधर अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH में क्योंकि इसमें 2 बीटा हाइड्रोजन है, सो इस बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कैसा एल्कीन बनेगा। देखिए 2 एंड 3 के बीच में 2 एंड 3, तो थर्ड नंबर कार्बन एटम से हाइड्रोजन हम रिमूव करें, सो दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, मीन्स 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है, बाकी एज इट इज है मॉलिक्यूल। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन आर देयर, सो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2, सो इसका नाम होगा सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है, सो 5 कार्बन है, पेंट 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन, पेंट 2-इन बना है। सो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, पेंट 2-इन एंड पेंट 1-इन। अब हमें देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। सो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए है अपना सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, देखिए इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जब हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव हो
मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, एल्कीन तो बनता ही है, लेकिन दैट एल्कीन कौन सा एल्कीन होगा, विच हैज ग्रेटर नंबर, ज्यादा नंबर हो एल्काइल ग्रुप्स के, एल्काइल ग्रुप्स कहां जुड़ा हो, अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हो, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। देखिए ये एल्कीन बना, ये अपना डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इनसे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स किसके जुड़े हुए, इसमें है या इसमें है। तो पहले इसमें देख लेते हैं हम, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इसमें एल्काइल ग्रुप ये है अपना, ये एक एल्काइल ग्रुप ज्वाइन है, एक एल्काइल ग्रुप इसमें ज्वाइन है। सो एल्काइल ग्रुप विद डबल बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पर 1, ठीक है। नाउ सी दिस, सी दिस वन, here this alkene is formed, this is our doubly bonded carbon, doubly bonded carbon के 1 methyl group and इधर है 1 ethyl group, so 2 alkyl groups are bonded, so alkyl group कितने हो गए doubly bonded carbon के 2, और and in this case doubly bonded carbon के 1 propyl group is there, so only 1 alkyl group is there, so more number of alkyl group जिस भी alkene में है doubly bonded carbon से join, वो alkene will be, that alkene will be a major product, so इसमें 2 है, 2 alkyl groups are there, so this is major product, this is minor product. So if there is possibility, if there is 2 types of beta hydrogens present in a alkene, then 2 types of possibility of 2 types of alkene, and which alkene will be major product, that is decided by Set-Jeff rule, एंड सेट-जेफ रूल क्या बोलेगा, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, वो एल्कीन होगी विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ज्वाइन होंगे। सो दिस इज सेट-जेफ रूल। सो यहां पर हम ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में कौन सा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा ये फाइंड आउट करते हैं, एंड दिस सेट-जेफ रूल इज गिवन बाय द जेटसेफ साइंटिस्ट इन 1875। नाउ अनदर क्वेश्चन, टेक्स सी दिस क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन, दिस इज टेकन फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी, क्वेश्चन 10। देखिए ये एक अपना हेलो एल्केन है, ये रिंग है ऐसे, इसके ब्रोमीन जुड़ा है, सो ये हेलो एल्केन है। नाउ जिस ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन, ये भी डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये भी डायरेक्टली बॉन्डेड है, और ये कार्बन भी डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो डायरेक्टली बॉन्डेड अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन, एंड हेलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है अपना, ठीक है। और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ भी इसके साथ भी 3 बीटा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे सेपरेट करके लिख दिया है अभी, ठीक है। और इसके पास भी 2 बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन उनको नहीं लिखा है मैंने, कोई जरूरी नहीं है। ये वाले 2 और इस पे जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं सेम ही है, ठीक है, तो एक को हम यूज करेंगे। सो दिस इज आवर कार्बन एटम, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, सो बीटा कार्बन के लगे बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा कार्बन लगे बीटा हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन के लगे 3 बीटा हाइड्रोजन, एक को मैंने सेपरेट करके लिख लिया है। नाउ सॉरी, this KOH, alcoholic KOH is reacting with, and heat is also present. When this alcoholic KOH is reacted with haloalkane, क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एक हाइड्रोजन एंड एक हेलोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, सो ये हाइड्रोजन है फ्रॉम बीटा कार्बन, और ये हाइड्रोजन भी है फ्रॉम बीटा कार्बन, एलिमिनेट होंगे। सो यहाँ भी 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर देयर, एक ये है, एक ये बीटा हाइड्रोजन है, और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है ये तो इनमें से कोई सा भी ले लो। सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, तो 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर देयर, सो 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। नाउ विच विल बी मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेट-जेफ रूल। सो फर्स्ट वी सी द विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। देखिए इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करें, सो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर, यहां पर इस 1 नंबर कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा सब कुछ, तो इससे वो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड यहां आया है, देखिए
यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, CH2 बचा हुआ है, ये CH2, फिर डबल बॉन्ड बन गया, फिर अपनी रिंग है, ठीक है। नाउ इफ वी रिमूव दिस बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, then this bond will shift here along with its 2 electrons। ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, यानी किस कार्बन के बीच, 1 and 2 के बीच, और ये हाइड्रोजन निकलने के बाद ये प्रोडक्ट अपना बनेगा। देखिए 1 नंबर कार्बन एंड 2 नंबर कार्बन के बीच आया है डबल बॉन्ड, ठीक है। और CH3 जो था वो एज इट इज है, ठीक है। और इसके तीन मिथा, ठीक है। अब हमें देखना है ये एल्कीन बना और ये एल्कीन बना, इसमें से विच वन इज मेजर प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेट-जेव रूल, क्या कहता है सेट-जेव रूल, डबली बॉन्डेड कार्बन के मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो प्रोडक्ट मेजर होगा। सो डबली बॉन्डेड कार्बन देखते हैं, दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन, ये सिस्टम हो गया एक, ठीक है। तो इस सिस्टम के 1 और 2 एल्काइल पार्ट लगे हैं, 1 और 2। तो यहाँ एल्काइल पार्ट कितने हैं डबली बॉन्डेड सिस्टम के, 2। और यहाँ पर हम डबली बॉन्डेड सिस्टम देखते हैं, उसके कितने एल्काइल पार्ट हैं, 1 एल्काइल पार्ट, 2 एल्काइल पार्ट, और ये भी एल्काइल पार्ट जुड़ा है, यानी 1, 2 और 3 एल्काइल पार्ट्स आर देयर, 3 है। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मोर नंबर ऑफ एल्काइल पार्ट्स, जिस भी डबली बॉन्डेड कार्बन के जुड़े हुए होते हैं वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है। सो अकॉर्डिंग टू सेट-जेव रूल, फिर से देख लीजिए सेट-जेव रूल क्या है। सेट-जेव रूल क्या है, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। doubly bonded carbon atoms के more number of alkyl groups जुड़े हुए होंगे वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। सो इस क्वेश्चन में देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के एक एल्काइल पार्ट, दूसरा एल्काइल, ये डबली बॉन्डेड, और इसके ये एल्काइल पार्ट, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, ये एल्काइल पार्ट, 3 एल्काइल पार्ट्स हैं। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो इसको लिख देते हैं हम मेजर product। So this is how we complete our this haloalkane and haloarenes का dehydrohalogenation reaction, elimination reaction, और it is also called beta elimination। beta elimination क्यों बोलते हैं इसको, because hydrogen from beta position is removed। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।